Dear students, here we are into linear equation in two variables and we are going to have a look on the basic concepts of this. Suppose we have a situation like this. Sanjay has rupees 1 more than twice the money Kaustav has. Sanjay has rupees 1 more than twice the money Kaustav has. So let Kaustav has x rupees. Let Kaustav has rupee x, then twice his money will be how much? Then twice his money will be 2x, isn't it? Will be 2x. And let Sanjay has y rupees. Let Sanjay has y rupees. Now Sanjay has 1 rupee more than twice Kaustav's money. Now this is one example of linear equation in two variables. Did you understand? So this is one example. Now first thing we should understand is that there are many values, there are many possible values which will prove this statement true. How do we get those values? What we will do, we will make blocks here, and this is Sanjay sir's money and this is Kaustav's money. Sorry, this is Kaustav's money, this is Sanjay sir's money. So suppose Kaustav had 1 rupee, then I will have 1 more than double. So 1 ka double 2 and plus 1, so I will have 3 rupees. Suppose Kaustav has 2 rupees, then I will have 5 rupees. Kaustav has 3 rupees, then I will have 7 rupees. 3 2s are 6 plus 1, 7 rupees. So these values are called solutions of the linear equation, and there will be thousands of values. They will be the solutions of this. Remember, always x will be written as first and y is written second. So possible values of a linear equation, this way you can take out. On your own you put x over here 1 and then you get the value of y. So this is one of the methods to get the values. Number 2, a question may be asked, is 2 comma if is 1 comma 3 a solution of this? Suppose they ask कि इसका solution ये है कि नहीं, तो हम लोग इक्वेशन के को लेंगे y is equal to 2x plus 1. Then we will take out down the LHS, that is y. Y का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ 3, y is equal to 3, इक्वेशन 1. RHS में हम लोग लेंगे 2x plus 1. x के बदले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x के बदले यहाँ पर दिया हुआ है 2 into 1 plus 1, that is 3. यानी LHS और RHS इक्वल है, तो हाँ इसका सॉल्यूशन है. मान लीजिए हमने कहा उल्टा, is 3 comma 1 a solution of this, तो हम लोग फिर से उतार लेंगे. क्वेश्चन क्या है, y is equal to 2x plus 1, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन. y is equal to 2x plus 1, तो LHS y है, LHS is y. तो y is equal to यहाँ पर y का वैल्यू उस साइड रहता है 1 दिया हुआ है. RHS निकालते हैं 2x plus 1 और जो वैल्यू दे बैठाते हैं x का वैल्यू 3 दिया हुआ है. 2 into 3 plus 1, 3 to the 6 plus 1, 7. तो LHS और LHS y आ रहा है और RHS 7 आ रहा, दोनों इक्वल तो नहीं है. इसका मतलब ये वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है इसका. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली, लीनियर इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें हमेशा x को पहले, y को बाद में और कांस्टेंट को सबसे लास्ट में. तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं. 2x plus 2x plus 1 इज इक्वल टू y है, ऐसे लिखेंगे. 2x minus y plus 1 इज इक्वल टू 0 है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमेशा, पहले x फिर y फिर 1. अब देखिए, किसी भी हम लोग का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा उसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c इज इक्वल टू 0. ठीक है, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. तो यहाँ a विल बी इक्वल टू
बी विल बी इक्वल टू, जब कुछ नहीं रहे तो इसका मतलब वहाँ 1 है तो -1 एंड सी विल बी इक्वल टू 1। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया 5x - 3 इज इक्वल टू 2y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 5x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0, यानी सब चीज़ इधर रहेगा, 0 उधर रहेगा। अब यहाँ पर a कितना है तो a है 5, b कितना है -2, c कितना है -3। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कभी कभी एक वेरिएबल गायब कर देगा। हो सकता है आपको ऐसा दे दे, हो सकता है दे विल गिव यू लाइक दिस, देखा जाए, हो सकता है आपको ऐसा दे दे 4y इज इक्वल टू 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब x नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0x + 4y और ये इधर आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a इज इक्वल टू, अगर x नहीं है तो पक्का a 0 होगा, b y का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट विद साइन हो गया। हो सकता है x है और y नहीं है, 3/2x इज इक्वल टू 5, तो इसको 2 उधर ले जाइए तो 3x इज इक्वल टू 5 2 = 10, 3x, अब y नहीं है पहले तो 0y -10 इज इक्वल टू 0। तो अब x हो गया, y हो गया और 10 हो गया, 10 इधर आया तो अब a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 0 एंड c बराबर -10। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 3x/2 - 4y/3 इज इक्वल टू मान लीजिए 7, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा 7, 9x - 8y is equal to 42, so a is equal to 9, b is equal to -8 and c is equal to 42। Did you understand? अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम लोग का यहाँ पर 5x - 3 इज इक्वल टू 2y, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम यहाँ पर उसी तरह का बॉक्स बना लेंगे x और y, और अपने मन से यहाँ y में के बदले 2 बैठा दिए, 1 बैठा दिए, तो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x इज इक्वल टू 2 × 1 और ये 3 उधर गया तो +3, तो 3 2 5, 5/5 तो 1। अब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, तो 2 2 = 4, इधर +3, 5x इज इक्वल टू 7, सो x विल बी इक्वल टू 7/5। इसका सॉल्यूशन है 1 1 7/5, इन दोनों को एक जगह सॉल्यूशन x और y, इन दोनों को एक जगह, लाइक दैट वी कैन कीप ऑन गोइंग हैड। So this is very very important for you all. You can do this at home now, practice it at home. Thank you very much.